ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے آنا پاس یار. جو لوگ آتے ہیں, ایک منٹ ڈاکٹر سنو, ذاکر نائک کو اسی چیز کے اوپر تو دھکے دے کے نکالا تھا انڈیا سے. وہ بات تو سنو بھائی. ان کے پاس جو نان مسلم آتے ہیں یا ایکس مسلم آتے ہیں نہیں اور آ آتے. کر جو ہے وہ اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں, جی اس میں ایسا ذاکر نائک کے ساتھ مجھے بتاؤ کس ایکس مسلم نے ڈیبیٹ کیا آج تک؟ بہت ایکس کسی مسلم نے تو نہیں. نہیں ہے, مطلب نان مسلم کرتے ہیں usually. نان مسلم ڈیبیٹ نہیں کرتے. نیچے مائک پہ کھڑا ہوتا ہے کوئی بندہ, وہ ایک سوال کرتا ہے, ادھر سے ذاکر بک ہاں بک کرتا ہے, اس کا وہ جیسے ریبٹل دینے کی کوشش کرتا ہے, ذاکر کہتا ہے دفع ہو جاؤ. تم لوگوں کو یہاں پہ نہیں, میں ایسا تو بٹھا نہیں کہتا, کے ایگزیکٹلی یہی کہتا ہے, ایسا کہتا دفع ہو کبھی نہیں جاؤ. کرتا یار. تمہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ تمہیں سوال پوچھنا تھا. یو آر ناٹ ہیئر فار ڈیبیٹ. ڈیبیٹ کرنی ہے تو میرے ساتھ ڈیبیٹ رکھ لو اور اسٹیج پہ آ کے کرنا. یہ ذاکر کہتا ہے. میرے چینل پہ میں نے آپ اور میں نے آپ تو جیسا بھائی, ہر بندہ آ کے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے, اپنا ہر ریبٹل پوائنٹ رکھتا ہے میرے ہر پوائنٹ کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, بہرحال مجھے ذاکر کے اوپر اتنی بات نہیں کرنی. ذاکر کچھ نہیں ہے میرے لیے, بابا جی کا ٹھلو ہے میرے مطابق. اگر وہ بابا جی کے ٹھلو سے کچھ زیادہ بھائی آپ وہ کی مین اہمیت رکھتا پرسنالٹی ہے نا, وہ لے مین آؤ نا پرسنالٹی بھائی. ہے اگر آپ کے لیے جس مین کو بہت پرسنالٹی ہے تو لے آؤ انفارمیشن ہے اباؤٹ اسلام, تو بھائی. آپ اپنی ڈبیٹ ان کے ساتھ جا کے کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر لے آؤ, میں نے اوپن چیلنج کیا اس کو کئی دفعہ. بھائی لے کے آنے کو گولی مارو آپ. کیا مطلب آپ پھر ان کے تو کیسے کروں, جہاں ہوا پر میں وہ کروں؟ بھائی جہاں پر سارے نان مسلم آ کر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ ادھر نہیں, کیوں مجھے نہیں اس کے آتے؟ ساتھ نیچے بیٹھ کے مائک سے پوچھنا نہیں ہے, سوال نہیں ہے میرے پاس, میرے پاس جواب ہے. میں تو اس کی گانڈ مارنی ہے. تو وہی نا, تو بھائی سوال کے ساتھ جواب بھی بولو اپنا. نہیں اس کو جواب کہو نہیں بھائی بولو, میرے نیچے پاس کھڑے ہو آنسر کے ہے, ہیلو ہیلو ہیلو. کوشچن نہیں ہے میرے پاس. مجھے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے پراپر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے, کرتا ہے؟ جاؤ پوچھے آؤ, ہاں تو کرے گا نا ڈینی, جاؤ کیوں نہیں پوچھے کرے آؤ, گا, جاؤ پوچھے آؤ, کیوں نہیں کرے گا؟ جاؤ پوچھ کے آؤ نا. بھائی پوچھ کے آنے کو چھوڑو, آپ اس کے ساتھ ابے آمنے جاؤ سامنے آ کے پوچھ کے ڈبیٹ آؤ, کیوں میں نہیں نے کرتے؟ کہا ہے کہ نہیں رکھتا وہ. اتنے بھائی کیوں نہیں یوٹیوب رکھتا, آپ پلیٹ آؤ. فارمز ہیں جس پہ چیلنج کیا ہوا ہے آج سے 10 سال پہلے سے. ڈاکٹر ڈیوڈ وڈ نے, وہ نہیں آتا ڈیبیٹ کرنے. سیم شمون نے, وہ کنجر کا بچہ نہیں آتا ڈیبیٹ کرنے. ٹھیک ہے, ان دو کے اوپن چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. کیوں نہیں آتا؟ رنڈی رونے میں کیوں ڈلا ہوا ہے؟ اوپن چیلنج ان دونوں کا کہ تم دنیا کے جس بھی خطے میں کہتے ہو, ہم وہاں آ کے تمہارے ساتھ اسٹیج پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اگر وہ مسلمان کنٹری نہیں ہونا چاہیے. بس ان کا سمپل بات ہے, مسلمان کنٹری نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انڈیا میں بلا لو, آ جائیں گے. مسلمان کنٹری, مسلمان لا نہیں ہونا چاہیے. ہم تمہارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اسٹیج پہ. سیم شمون اور ڈاکٹر ڈیوڈ وڈ دونوں نے یہ اوپن چیلنج دیا ہے, 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. وہ کتے کی طرف آ گیا. اوکے, میں نے کہا ہے کہ یار ذاکر نائک کو اوپن لائف سٹریم رکھ لو, جیسے یہ اوپن لائف سٹریم ہے, جیسے تم آ کے جڑے ہو میں بھی اس کی لائف سٹریم میں جا کے جڑ جاؤں, جیسا تم مجھ سے بات کر رہے ہو میں بھی اس سے کر لوں. نہیں رکھتا, رکھو اسے کہو یار مجھے بلائے نہیں, اوپن لائف سٹریم رکھ لے, میں آ جاؤں گا. جاؤ. نہیں اوکے ناؤ یہ بات ختم ہو گئی, فل سٹاپ ہو گیا. اب مجھے بتائیں آپ کو کیا پتا ہے شریعہ کا؟ یار مجھے کچھ نہیں پتا یار. اوکے ونس اگین, اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہیں پتا, تو بھائی پھر سنو, لرن کرو, میں تو سکھا رہا ہوں. ہاں تو وہی تو سن رہا ہوں میں. اوکے تو میں سکھا رہا ہوں, یوٹیوب سے سنو نا, اوپر کیوں آئے ہو, لائیو کیوں آئے ہو؟ لائیو آنے کا مطلب ہے یہاں پہ اسی اسٹریم بارے میں یارڈ تو میں آنے کا کوشچن ہی مطلب کرنی ہے تھی. کہ آپ مجھ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں, اور سوال جواب ذاکر نائک کی مجھے یہاں پہ وہ کبوتر بازی نہیں کریں. میں نے آپ کو بتا دیا, جس دن وہ ڈیوڈ کے ساتھ اسٹیج پہ ڈیبیٹ کر لے گا, سیم شمون کے ساتھ اسٹیج پہ ڈیبیٹ کر لے گا, مجھے پتا لگ جائے گا کہ ہاں واقعی اس میں اس کے ٹٹوں میں پانی ہے. اسے پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی اسے ڈیبیٹ کی نا, یہ اس کو زمین کے اندر اتنا گاڑ دیں گے ڈیبیٹ کے اندر کہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا. وہ مر جائے گا مگر ان دونوں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرے گا. چلو ٹھیک ہے, فی الحال فل اسٹاپ. اوکے اوکے بائے, ٹیک کیئر. اوکے جی, تو جناب یہ تھا آج کا ٹوٹل سین. 4.5 گھنٹے میں نے آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتائی ہیں, اور میں نے مسلمانوں کو کیوں لیا؟ ٹھیک ہے, میں نے مسلمانوں کو اس لیے لیا کہ آپ لوگوں کو پتا لگے کہ انڈیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ شریعہ ہے کیا. ان کو شریعہ کا الف بے پے بھی نہیں پتا, بلکہ الف بے پے کو چھوڑیں, ان کو شریعہ کا سین بھی نہیں پتا. یہ کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ میرا سوال سمپل ہے کہ انڈین مسلمان مانگ کیا رہے ہیں؟ what are they asking for؟ ان کی ریکویسٹ کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ شریعہ. اوکے, what is شریعہ؟ they have no bloody idea. what is fiqh؟ they have no bloody idea. ان کو امب کا پتہ نہیں ہے, امب کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کیا, لیکن ان کو چاہیے نام چاہیے. یہ بالکل ویسے ہی ہے, ہم ایمان لاتے ہیں تمام پرانی کتابوں پہ, تو توریت پہ, زبور پہ, انجیل پہ. توریت زبور انجیل کیا ہے میرے پیو کو بھی نہیں پتا کیا ہے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے نازل کی تھی, اس میں کیا لکھا ہے پتہ نہیں.
کس پہ ایمان لائے ہیں آپ؟ او میں نام پہ ایمان لایا ہوں. سو یہ ایمان لاتے ہیں نام کے اوپر. ان کو شریعہ چاہیے, نام شریعہ ہے کیا وہ نہیں پتا. نو 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 نو, وہ کیسے پتا لگے گا ہمیں؟ What is شریعہ؟ I don't know. مگر مجھے چاہیے شریعہ. بھائی ہے کیا, تم نے کبھی پڑھا ہے؟ نہیں. تمہیں چاہیے کیوں؟ بس چاہیے. یار سیکھ تو لو تمہیں کیا چاہیے, سمجھ تو لو کہ تمہیں چاہیے کیا. That's the reality. یہ ریئلٹی ہے. ابھی آپ کو میں نے جو سرفیس ہے وہ ابھی اسکریچ بھی نہیں کی شریعہ کی. شریعہ کی میں نے ابھی سرفیس بھی اسکریچ نہیں کی ہے. یہ لوگ بار بار کہتے ہیں دیش 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 دیش. یہ لوگ دیش کو دیکھتے ہیں, تھوڑا سا دیش کو دیکھتے ہیں. What is meant by Darul Harb? Enemy land. As for the fatwa claim that India is an enemy land, Darul Harb. Now شافی لکھ رہا ہے 12ویں صدی عیسوی کے اندر, 13ویں صدی عیسوی کے اندر یہ والی بک شافی لکھی ہوئی ہے, 13ویں صدی عیسوی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ اس وقت ابھی انڈیا پہ 100% اسلام کا قبضہ نہیں ہوا اور 100% اسلام کا بول بالا نہیں ہوا. لہٰذا انڈیا کے اندر کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہے اور کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہے. So there are two different parts divided. One is Islamic India and one is non-Islamic India. لہٰذا وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے, دارالحرب دارالاسلام. اب وہ کہہ رہا ہے کیا انڈیا دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ لوک, انڈیا از این انیمی لینڈ, کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں. It is not in the generality true. Generally یعنی کہ globally اوپر سے دیکھا جائے تو true نہیں ہے. Because areas where Muslim reside and there is a remnant of Islamic rule. کیونکہ جہاں پہ مسلم reside کر رہے ہیں وہاں پہ اسلامک رول ہے. Even if this is limited to marriage and what pertains to them, for example, are considered Muslim land. تو جہاں پہ وہ میجورٹی میں ہے وہ مسلم لینڈ ہے اور وہاں پہ اس وقت ہم نے قبضہ کر لیا ہوا. A Muslim land does not become an enemy land except under 3 conditions. ایک اسلامک لینڈ جو ہے وہ کبھی بھی 3 کنڈیشنز کے بعد, 3 کنڈیشن تک پوری نہیں ہوتی, وہ نان مسلم لینڈ نہیں کہلاتا, دارالحرب نہیں کہلاتا. کون سا؟ That the security of the Muslim through their leader no longer exists and the security of the non-Muslim has taken its place. Number 1. Number 2, that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid Muslims. کہ اگر چاروں سائڈوں سے نان مسلم ہو گئے ہیں, سینٹر میں اسلام ہے, اب مسلمانوں کی کمک نہیں پہنچ سکتی, رسائی نہیں پہنچ سکتی. اینڈ ناٹ اے سنگل ون آف اسلامک رولر ریمینز دیئرن, کہ ایک بھی اسلامک رولر اس کے اندر نہیں بچا. دیٹ از effectively means that none of the land that Islam has spread to and which someone is remnant can be considered an enemy land. As for the country's enemy land, Darul Harb, above the war, consists of those with whom the Muslims countries, Darul Islam, are at the state of war. Number 1, which it is clear that there is virtually no country on the face of the earth where a Muslim has an excuse to behave differently than he would in an Islamic country, whether it is commercial or other. Now, وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ جہاں پہ مسلمان کو مسلمان طریقے سے نہیں رہنا اور اس نے اس کو ابورٹ بائی نہیں کرنا, اگر وہ ڈفرنٹ کنٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اسلامک شرع کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو دیر از دارالاسلام دارالحرب, تیسری چیز کوئی ہے ہی نہیں. اب دارالاسلام جو کہ انڈیا کے اندر بنا, اس کے اندر ایک شرع نافذ کی گئی, اس کو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری. فتاوی عالمگیری شرع قانون دیتا ہے انڈیا کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے, کس طریقے سے گزارنا ہے. وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے. آپ کو اب یہ مسلمان کہتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری جو ہے, یہ جو شریعت ہے جو ہمیں دی گئی ہے, بہت سارے مسلمان اس کو ماننے سے انکاری کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو عمدۃ السالک دکھایا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فتاوی عالمگیری اس سے کوئی ڈیفرنٹ چیز بتا رہا ہے. نہیں, فتاوی عالمگیری صرف اس کو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں ڈیفائن کرتا ہے. That's it, nothing more. وہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں دکھاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ, دوسرے کے یہاں رات کو داخل ہوا اور مال چرا کے اس کو باہر نکال دیا, پھر مالک کو بتایا, اس کو قتل کر دیا, مالک پر کچھ نہیں. ایک شخص دوسرے کے یہاں رات کو داخل ہوا اور مال چوری کر کے اس کو باہر نکال لیا, پھر مالک اس کے پیچھے دوڑا اور اس کو قتل کر دیا, تو مالک پر کچھ نہیں. اوکے, فتاوی اہل سمرقندی میں لکھا ہے ایک چور نے ایک شخص کی دیوار میں
सींध लगानी शुरू की और हनूज सुराख ना होने पाया, मालिक ने उसको देखा, उसके ऊपर एक पत्थर डाला, वो मर गया। तो मालिक की मददगार बरादरी इसके ऊपर दीद वाजिब होगी और मालिक मज़कूरा पर कत्ल लाजिम आएगा। ये ज़ख़ीरा में है। फतावा अबू हदीस में मज़कूर है कि एक शख्स दूसरे की दीवार पर चढ़ा, बिलाज़र चोरी के, और दीवार पर चादर पड़ी। बस मालिक दीवार को खौफ हुआ, इसने चलाया, ये चादर लेके चल दिया। बस आया मालिक को हलाल का, इसको फेंक मारने का, तो फरमाया यहाँ इसको रवा है बशर्ते का चादर 10 दिरहम या से ज़्यादा की हो। सी सो नाउ एक ने चोरी किया और एक ने भी चोरी करने से पहले उसको मार दिया। 2 डिफरेंट वर्डिक्ट हैं और दोनों बताए गए हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर वो सेल्फ डिफेंस है, बेसिकली सेल्फ डिफेंस किस तरीके से उसके ऊपर हावी हो रहा है। अब आगे चलते हैं कि हाथ काटना किस जगह पे। एक ने दूसरे पे दावा किया है कि इसने मुझसे ये माल चुराया, बस चोर ने कहा हाँ, मैंने इससे लिया है, तो माल का ज़ामिन हुआ, इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। क्यों? एक दूसरे ने दावा किया इसने मेरे से लिया, उसने नहीं लिया, मैंने चुराया नहीं है। अगरचे इसके बाद वो चुरा लेने का भी इकरार करे, ये एक तो उसने कह दिया कि हाँ मैंने दिया है और मैंने लिया है, तो अब चोरी का इल्जाम उस पे नहीं आएगा। एक ने दूसरे पे सरका का दावा किया और मद्दा ने उससे इनकार किया, तो इमाम आज़म फरमाते हैं इससे कसम ली जाएगी, और उसने कसम से इनकार किया तो इसका माल हुक्म देगा, इसका हाथ काटने को हुक्म नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह अगर उसने इकरार किया, रजू किया, फिर भी ये हुक्म है। इसी तरह गवाही की सूरत में अगर ऐसा ने रजू कर लिया तो ये हुक्म है कि मालिक का ज़ामिन हुआ, हाथ नहीं काटा जाएगा। 2 गवाहों ने एक शख्स से चोरी की गवाही दी, इसका हाथ काट दिया गया। गवाहों ने रजू किया कि ये नहीं फलां-फलां दूसरा है, तो इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। पहली दफा अगर 2 गवाहों ने कह दिया कि ये चोर है, उसका हाथ काट दिया गया है। बाद में उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं था, तो कोई मसला नहीं है, अब दूसरे का हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि हाथ काट दिए गए। अव्वल की जीत के दोनों के जामिन गवाह हुए, अगर दूसरे 2 गवाहों ने अव्वल गवाहों के रजू कर लेने के बाद गवाही दी तो मकबूल ना होगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। 2 गवाहों ने चोर के इकरार और सरका में गवाही दी और मुनकर है या खामोश है तो उसका हाथ ना काटा जाएगा। अगर 4 ने गवाही दी फिर 2 ने रजू किया, दूसरे में चोरी की गवाही, तो दोनों मशहूर इलाहियान में से किसी का हाथ नहीं काटा जाएगा, माल का हुक्म अव्वल पर दिया जाएगा। नाउ द सेम थिंग जो हमने वहां पे पढ़ी है कि कौन कौन सी शर्त है, किस किस शर्त के ऊपर हाथ काटा जाएगा, किस किस शर्त के ऊपर हाथ नहीं काटा जाएगा। अगर वो ये होगा, अगर उसके ऊपर गवाही पूरी हो जाएगी, अगर 4 लोगों ने गवाही दे दी है, 2 लोगों ने गवाही दी है, क्या है, बाद में गवाह बदल लिए जाएंगे तो क्या होगा। सेम वो सारी कंडीशंस डिफरेंट फतावाज के जरिए मिलाकर फतावा आलमगीरी के अंदर बता दी गई हुई है। फतावा आलमगीरी लोग कहते हैं कुरानी का नहीं है। कुरानी कैसे नहीं है? कुरान आपको एक्सप्लेन ही नहीं करता ये बातें। कुरान एक आयत देता है, चोर का हाथ काट दो। अब मुझे बताओ किस वक्त काटना है, किस वक्त नहीं काटना, ये आपको कहां से पता लगेगा? ये आपको कहां से पता लगेगा? ये आपको शरा शरीयत से पता लगेगा। ये आपको कुरान से पता नहीं लग सकता। डिफरेंट मौकों के ऊपर क्या क्या हुआ, इन सूरतों का बयान जिनमें हाथ काट जाना और जिनमें ना काटा जाना, इसमें 3 फजलें। जिन सूरतों में हाथ काटा जाएगा, जो चीज नाफे मरबूह इस्लाम में पाई जाती है उसकी चोरी का हाथ नहीं काटा जाता, जैसे जलाने की लकड़ियां व घास, नरम मछलियां वगैरह, मछली में नमक, दीवी ताजी अदा वगैरह वगैरह। हाथ किसमें जाए? याकूत बज़्म में हाथ काटा जाएगा, कज़ावी अलकाज़ी हालांकि जवाहिर में हाथ काटा जाएगा, या गासिया में भी यार सोना चांदी मोती वगैरह इन चीजों में हशाम ने अहमद से रवायत किया है। अगर उसने इन चीजों को ऐसी सूरत में चराया जैसा कि मबाह पाई गई, यानी मिट्टी में मिली हुई और पत्थर में मखलूक, तो हाथ काटना वाजिब ना होगा। यानी कि वंस अगेन जैसा कि मैंने बताया, जमीन पे पड़ी हुई एक ऐसी जगह पे चीज पड़ी हुई है जहां पे सिक्योरिटी लाजम नहीं है, सिक्योरिटी के तमाम सेफगार्ड्स उसके ऊपर इंप्लीमेंटेड नहीं होते, तब नहीं काटा जाएगा। वैसे चुराई गई तो काट लिया, जमीन से उठा लिया, हाथ नहीं काटना। ये सेम वो चीजें हैं जो मैंने उम्दा तो सालिक से आपको पढ़ के दिखाई हैं, वो फतावा आलमगीरी में डिफरेंट तरीके से बयान कर रहा है। वहां पे डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट है, दोनों का मफहूम सेम ही है। मफहूम नहीं बदलता, मीनिंग नहीं बदलता। ज़ाहिर है रवायत के मुवाफिक बहरहाल हाथ काटना वाजिब होगा। जिस लकड़ी से हाथ नहीं काटा जाता, इसका तख्त या किसी कुर्सी का दरवाजा बनाया जाता है, अगर किसी ने उसको चुरा लिया तो हाथ काटा जाएगा। और घास वंदारा और पत्ता जैसे काबिल अमल के हाथ नहीं काटा जाएगा। वैसे अगर उसने चटाई वगैरह बनाई तो भी हाथ ना काटा जाएगा। मसलन उसका बोरिया बनाया जिसको किसी ने चुराया था, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, ये मुहीत है। फॉर एग्जाम्पल घास फूस ये वो छोटी मोटी चीजें, ये इसमें ओके, इस पे नहीं काटा जाएगा। नमक चुरा लिया, सो एक वैल्यू करार देनी है। अब वो वैल्यू कहाँ पे है? अगर बोरिए के असल मसले में इसकी बनावट की कीमत कहलाती है, तो मशाइख ने कहा इसमें भी हाथ काटा जाएगा क्योंकि उसने बोरी बना दी हुई थी, लिहाजा हाथ काटा जाएगा। काफिया दरवाजों के सरके में जब ये हाथ काटा जाएगा, जब वो हर जमीन में हफीफों का एक आदमी उसको उठा लिया जाएगा, भारी ना होगा, इस वास्ते भारी दरवाजे की चोरी पर रगबत नहीं की जाती। अगर दर से मरगोज के सरका में हाथ नहीं काटा जाएगा, ये मतमीन जो चीजें जल्द फासिक रहती है, जैसे अखरोट बादाम, इनके चुराने से हाथ काटा जाएगा, बशर्ते कि वो हर जमीन में हो, दरख्त पर हो, जो खेती काटी ना होगी, उसकी चोरी हाथ नहीं काटा जाएगा। यानी कि अगर जैसा कि मैंने वहां पे पढ़ा था, दरख्त से जहाँ पे वो फ्रूट नीचे लटक रहा है वहां पे हाथ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, खेती काट कर किसी अहाते का जिसका मुफ्तिल रखी है उसकी चोरी से हाथ काटा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की खेती के अंदर घुस जाते हैं, किसी के अपने लैंड में घुस जाते हैं, वहां से उसकी खेती काट के चोरी करते हैं, ठीक है, उसके खेत से ना हाथ काटा जाएगा। गोश्त से जो हाथ नहीं काटा जाएगा, ये आम है, खुराक गोश्त नमक दिया हुआ, ये फतवा कदीर में है। अगर एक दूसरे से तोआम चुराया है, हालांकि ऐसे साल में चुराया गया था, कहत थी, तो इसकी चोरी से हाथ नहीं काटा जाएगा। ख्वाह ऐसा ताम हो कि जल्द बिगड़ जाता है, जल्द ना खराब होने वाला, साले फ्राई में ताम, खाने पीने की चीज चुरा ली है, ये वो चुरा लिया तो हाथ नहीं काटा जाएगा। वंस अगेन अंडे वाली हदीस को साइड पे रखा और दूसरी हदीस पे लेके आते हैं।
اگر سالے سودا میں پھلوں کی چوری سے ہاتھ نکالا جائے گا, خواہش رکھتے ہوں وغیرہ وغیرہ, روٹی چرانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وغیرہ وغیرہ, گیو کی روٹی اور یہ وہ روٹی اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کاٹنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دا ہول آئیڈیا از فتاوی عالمگیری ایکچولی ڈکٹیٹس ان الفاظ کے اندر جن الفاظ کو آپ کے ہندوستان کے اندر بولا جاتا تھا, سمجھا جاتا تھا, انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا, ان الفاظ کے اندر وہی شریعت اسلامیہ کو یہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا گیا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے دنیا کا جو کہ اس کو پڑھ کے پھر بولے کہ میں اس کو مانتا نہیں, بیکاز یہ ایبسلیوٹ وہی چیزیں ہیں. ابھی میں نے ایک ایسی چیز کا کمپیریزن کیا ہے, ابھی آگے بھی چلتے ہیں, جہاں پہ ان لوگوں کو مسئلے نظر آتے ہیں وہی مسئلے میں وہاں پہ بھی شفٹ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. سیم مسائل, سیم تھنگس ایز اٹ از دونوں جگہ پہ موجود ہیں. ان کا بولنے کا سٹائل, بیان کرنے کا سٹائل از a little different based on the nomenclature of India versus the nomenclature of the other side. ادر سائڈ جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اسلامک رولر کے اندر سے بیٹھ کے, اور وہاں پہ لکھا جا رہا ہے فتاوی عالمگیری فتووں کے ذریعے شرع کو بیان کر رہی ہے, فتووں کے ذریعے شرع کو بیان کر رہی ہے, اور تو کچھ نہیں کر رہی. That's exactly what they are doing. Who says, ایک ویڈیو ہے میں نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا آپ کے انڈیا کے, وہ جو اسلامک بندہ ہے اس نے چیز مانی ہے کہ فتاوی عالمگیری کہاں سے نکلا, وہ قرآن و حدیث اور اسلام کے اندر سے نکلا. وہ جو انڈیا کا ایک مسلمان ہے بڑا بولتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے, اس نے بولا اویسی نے, تھینک یو, اویسی نے اپنے انٹرویو میں بولا ہے کہ فتاوی عالمگیری پیور اسلامک ہے. جی اویسی نے, میرے پاس اس کی ویڈیو ہے, میں نے اس کو ابھی تک ڈاؤن لوڈ کر کے نکالا نہیں ہوا, لیکن اس کی ویڈیو اس نے بولا ہے, میں نکالوں گا نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا آپ کے پاس. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کچھ بھی کر لو, آپ اس کو 100% ریجیکٹ کر نہیں سکتے. اینڈ ہو دا ہیل آر یو ٹو ریجیکٹ, کہ آپ کو پتا ہے اس کو 400 اسلامک اسکالرز نے مل کے لکھا ہے, 400 اسلامک اسکالرز بلائے گئے ایران سے, افغانستان سے, قطر سے, سعودی عربیہ سے, اور یہاں پہ جس وقت مسلمانوں نے کافی حصے کو کیپچر کر لیا ہوا تھا, اس کو کیپچر کر کے وہاں پہ بلا کے ان سے لکھوایا گیا کہ یہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق شرح بنا کے دو. میں کوئی نیا کام نہیں کیا, نتھنگ نیو, سیم ورڈکٹس جو ڈفرنٹ ٹائموں میں چل رہے ہیں اس کو انہوں نے کنکلوز کر کے اس کے اندر ڈال دیا, اور اس کو شرح کا نام دینے کی بجائے فتاوات کا نام دے دیا. عالمگیری کے کلیکٹیو فتاواز, فتاوی عالمگیری. عالمگیر کو ویسے بھی اپنا نام کو ظاہر کرنا تھا نا بیچ میں, تو اس نے نام اپنا نام ڈال دیا بیچ میں, حالانکہ اس کو لکھنا چاہیے تھا شریعہ اسلامیہ. ان ریالٹی لکھا جانا چاہیے تھا شریعہ اسلامیہ, انہوں نے لکھا شریعہ اسلامیہ نہیں ہے, باقی سارا وہی ہے, باقی اٹ از ایبسلیوٹلی دی سیم تھنگ. لائک نیا ایک ڈفرنس آف اوپینین نہیں دے رہے ہو, دے آر ایکچولی ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ. اگر آپ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی اسی ٹائپ کی چیز لکھی ہوئی ہے. ہبا کیسے کرتے ہیں, غلام کیسے کرنا ہے, ہیلا کیسے استعمال کرنا ہے, نکاح کسے کہتے ہیں, نکاح کے بارے میں کیا ہے, نکاح کے قوانین کیا ہیں, طلاق کے قوانین کیا ہیں. اچھا نکاح سے مجھے یاد آیا, میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. ہاں ہے. تو پھر اور یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں یعنی جو ہاں بیٹیاں ہوتی ہے یہ ان سے بھی پیچھے ہے, یعنی مرد حضرات سے بھی پیچھے ہے, یہ پتا ہے آپ کو؟ کیا 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 مرد ہے یار؟ پڑھائی میں نہیں, بچی ہمیشہ بچوں سے آگے رہتی ہیں, ان کا رزلٹ ارے آگے ہے بچوں سے. ارے چیچا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو گریجویشن تک بھی پہنچنے نہیں دیا جاتا. کئی بالکل سارے لوگوں پہنچنے تو دیا جاتا ہے. میں گاؤں سے بول رہا ہوں, ہمارے گاؤں میں ساری بچیاں جو ہے سب گریجویشن کیے ہیں, بی کام کیے ہوئے ہیں, سب کا سب جو ہے ایم ٹیک کیے ہوئے ہیں. کوئی تو بھی, وہ تمہارے پہلے کا مسئلہ تھا, پہلے کا ایک مسئلہ منٹ تھا کہ نہیں پڑھا. آپ سب لوگ پڑھا رہے ہیں بچیوں کو اپنے, ایسی تمہارے بات گاؤں نہیں میں ہے ہوتا صاحب ہے, بہو, نہیں نہیں تمہارے ایسی گاؤں بات نہیں ہے. شہر بھی آگے تمہارے ہے, گاؤں گاؤں بھی آگے ہے, اس لیے سب بچی پڑھ رہی ہیں. کہاں بچی پڑھ نہیں رہی ہیں؟ کس ٹاپک پہ ہو رہی ہے؟ پلیز 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 ایک بار بتا دیجیے مجھے, یا بھی کس ٹاپک پہ چرچا ہو رہا ہے اتنا دیر سے؟
चर्चा ये बात पे हो रहा था, वो लिपस्टिक और वो जो आईब्रोज है वो बात तो हो गई थी खत्म। उसके बाद एक ये बोल एक रहे सेकंड थे एक कि भाई सेकंड एक तुमको सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड तो आईब्रो और लिपस्टिक तो लड़की ही लगाती है ना? तो हाँ लड़की के बारे में बात हो रहा है, लड़की क्यों ना बोले? ये मोहल्ले की लड़ाई कहाँ से आ गई? ये अभी बोले ना कि मुझे मोहल्ले की लड़ाई नहीं चाहिए स्ट्रीम में, तो फिर लड़की की बात हो रही, तो लड़की अपना बात आके सामने रखे भी नहीं, मतलब आप ही डिसाइड कर लीजिएगा उसके लिए भी कि क्या उसको सही लगाना है या नहीं लगाना। ये भी सारे मर्द ओनली लोग ट्रू ही तय साहब। कर लेंगे। जी बता दीजिए। जवाब अभी आप दीजिए एंजल जस्ट जी का। बोले ना कि जवाब मोहल्ले की जवाब लड़ाई मैं नहीं साहिल चाहिए। भाऊ कई बार दे चुका हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप मत फॉलो करिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, आप मत आईब्रो आप ना कराइए, सब कुछ कराइए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लानती कहता है ना अल्लाह के रसूल। तो लानत आप पर अच्छा कहाँ ठीक है, होगा? कल जब को आप इस्लाम कल धर्म को को मानते नहीं हैं, बोल तब रहे आपसे लानत से फिर क्या भी मतलब है? अगर लानती बनाए है ना। नहीं, फिर देखिए, फिर आप दो बात मत मुझे करिए बोलने साहिल दीजिए, बाबू। साहिल मुझे बोलने दीजिए। बोलिए एंजल जी। अच्छा मैं बोलूं? अच्छा ठीक है, हाँ अगर एंजल जी यही बोलिए। बात है कि अगर पसंद नहीं है तो हम इस्लाम छोड़ दें, है ना? तो इसी टाइप की बात है कि हो सकता है आपकी बेटी के भी ये चीजें नहीं पसंद है कि वो हिजाब में रहे, या उनका शौक है कि वो लिपस्टिक लगाए, आपकी वाइफ को भी ये पसंद है कि वो हिजाब में ना कर रहे और लिपस्टिक लगाए, ग्रुप बनाए, आपकी बहन को भी, तो आपके घर से तो 3 4 5 6 सब निकल जाएंगे औरतें, फिर आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए ओनली ट्रू इस्लाम साहब। उनकी उनकी आवाज हमको ज्यादा साफ नहीं आ रही है, अगर आप पूछें तो हम जवाब दें। वो पूछ रही जी हैं कि आपकी घर की औरतें, आपकी बीवी, आपकी बेटियां, अगर उनको हिजाब नहीं पसंद है, समझो कल की हाँ तारीख में उनको हिजाब नहीं पसंद आ रहा, हाँ उनको हाँ लिपस्टिक लगाने का शौक है, उनको आईब्रो जी बनाने का शौक है, और जी। आप कह रहे हैं कि अगर करना है तो इस्लाम छोड़ दे, तो आपको चल जाएगा कि वो इस्लाम छोड़ दे इसलिए? नहीं, इस्लाम हम आपके लिए कहे थे, मैं मुसलमान के लिए नहीं कहा था, मैं आपके लिए कहा था, हाँ, आपने मैं तो आप कहा ना लोगों के जिसको लिए ये, कहा। अरे आपने अभी हम थोड़ी तो देर पहले मुसलमान तो ही थे, कहा अब जिनको, जाकर इस्लाम छोड़े हैं। क्या हाँ प्रॉब्लम तो आप जिसको लोगों नहीं को हो रही पसंद है है वो ना? इस्लाम छोड़ दे। नहीं तो देखिए, हम तो फिर वही इस्लाम बात, दो बात मत करिए। छोड़ ही चुके हैं सर। प्रॉब्लम आपको सर है हम कि तो नहीं है, ये इस्लाम बताइए। छोड़ ही चुके हैं। हाँ तो सर बस जी बात हम खत्म हो गई आपके तो लिए ना, इस्लाम अब छोड़ किसके लिए ही बात कर रहे हैं आप चुके हैं, बताइए। फिर हम कैसे छोड़ दें? आप अपनी बात खत्म करिए, अब फिर बताइए किसके और लिए बात अगला कर रहे अगला हैं, को भी ये चलिए। चीज नहीं पसंद है, अगला कोई मुस्लिम है, देखिए मेरी साहिल भाऊ, मेरी मेरी साहिल मेरी एक भाऊ, सिस्टर है, सर वो मैं मुस्लिम बताऊं है। किसके लिए हम कर रहे हैं। हमारी हाँ बहन है, माँ है, हमारी हाँ। दोस्त है, उनके लिए बात कर रहे हैं। हमने अच्छा, छोड़ दिया, मुसलमान अच्छा बहनों के किया। लिए ना, मुसलमान हाँ, बहन के लिए मेरी कह रही ना? मेरी मेरी खुद की, हाँ मेरी खुद की बहन है, खुद की माँ है, जी और मेरे जी खुद के फ्रेंड्स हैं जो जी। इस अरे झंझट मुस्लिम में है, अभी हाँ भी वो वो मुस्लिम है। मुस्लिम है। एग्जैक्टली हाँ हाँ मैंने हाँ। छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली ने छोड़ दिया, उनके लिए तो अच्छा बात कर अच्छा। सकते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है, इसलिए तो बात उनके कर लिए रहे हैं। देखिए, मुसलमान में मर्द हजरात या औरत में बहुत से तादाद ऐसी है कि नमाज नहीं पढ़ते। रसूल अल्लाह की हदीस है, 246 मुस्लिम की हदीस है कि कुफ्र और इस्लाम के बीच का फासला मिटाने वाला नमाज है। तो अगर नमाज जो नहीं पढ़ता है मुसलमान, वो खुद कुफ्र कर रहा है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, जो भी मतलब गलत काम करता है, या फैमिली के हमारे करते, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो क्या करता है कि कोई भी आदमी समझाता है, नहीं समझता तो अपनी मर्जी से करता है। किसको कोई काट के फांसी लगा दे रहा है, आप बताइए। अरे तो तुम्हारे उस रसूलुल्लाह, बात से इसका क्या हैं? लेन देन है? ये तो आपकी तो नमाज न पढ़ने से लड़कियों का आईब्रोज बनाने का उसका क्या मैच है? वही तो आपसे करें कि जो भी हमारे घर के बच्ची हैं, अगर लिपस्टिक लगाना चाहें, बुर्का ना पहनना चाहें, सलीमा हाल में जाना चाहें, मॉल में जाना चाहें, जाएं। उनको कौन फांसी लगा रहा है? उसके तुम अरे लोग गार्जियन सर, जो लगाते होंगे हो। एक बार दो बार आपके समझाएंगे। मौलवी का फतवा, आपका मौलवी का ना बड़ा फतवा मोल आता है कि मौलवी का ये मत फतवा करो। कानून नहीं है मैडम, मौलवी का फतवा कानून नहीं है कि वो पुलिस डंडा सर लेके घर पे आ जाएगी। आपका नबी ही कह रहा है ना, जो आईब्रोज बनाती है हाँ, उन पे मैं लानत है। फिर वही तो आप सवाल आ गई, ये हम कौन क्या है कर रहे फिर? हैं? नबी को कौन फॉलो करता है, आप बताइए। सारे हाँ ऐसा मुसलमान, रसूल को बोलो मेरी कि कौन फैमिली फॉलो नबी, कर करती रहा है, है? मेरी फैमिली करती है ना। नहीं नहीं, वो एक तो मिनट मिस एथियस साहब, मिस एथियस जी,
मतलब अभी ये कह रहे हैं ना कि नबी को कौन फॉलो करता है, हम भी यही इनके चाहते हैं बात कि से नबी ये को कोई, साबित हो रहा है कि कोई नहीं फॉलो करता है, नबी को हाँ कोई तो फॉलो मैं नहीं करता, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल, तो फिर वो और क्यों चलिए फिर ठीक है, क्यों इतने रस्सी देर में पकड़ इनको के समझ रखी है आया। खुदा की नबी की? बल्कि मैं तो अरे नहीं चाहूंगा कि मानते ये यार, बोल अब दे, पकड़ के रखे हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं। जी साहिल बोले आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात इन्होंने कही है ना कि नबी को कौन मानता है, हम भी चाहते हैं कि नबी को कोई नहीं माने, और ये भी अभी कह के चले जाए कि भाई नबी को मत मानो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, खत्म, एग्जैक्टली, है ना? आई थिंक इनसे अब और क्वेश्चन मैं बनेगा हाँ। मैं आपसे पूछ मतलब रहा हूँ कि नबी को वही मानेगा ना कि जो मुसलमान होगा? जो पागल होगा, जो ठीक पागल है, होगा चलिए वो ठीक मानेगा। ठीक है, मुसलमान ठीक है, पागल है, चलिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया कि जो लेकिन हम मुसलमान है चाहते पागल। लेकिन हम चाहते कि आप पागल नहीं रहे, हमें आपसे मोहब्बत है मेरे भाई। आप लाइव स्ट्रीम में निकल आपने जाओ मुसलमानों को पागल कहा है, कभी आपकी हिम्मत पड़ेगी टीवी डिबेट में आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? न्यूज नेशन पर हाँ, आप बैठते हैं ना, मैंने तो कहा न्यूज हूँ ना, नेशन पर आप बैठते हैं ना, हिम्मत पड़ेगी मैं आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? आपके मैं मुल्ला ने क्या, साहिल को बोला था हाँ, लाइव वो स्ट्रीम में एक सेकंड, पागल हैं है, वो पागल बोल रहा मुसलमान है, ही हाँ। आपके मुल्ला ने ही बोला था उनको। हैं वो बोल आप सकते आपके आप मुल्ला ने आप बोला वो बोल था। इस्लाम सकते, ये नहीं बोल सकते हैं। आप इस्लाम छोड़ दिए हैं तो हमने आपको पागल कहा? आप आपके मुल्ला मुर्तद ने कहते साहिल हो, को लाइव स्ट्रीम में लाइव शो पे हम पागल मुर्तद बोला था। कहते हैं, हम हाँ। जो भी मतलब हम ये आपके वो रसूल इस्लाम कहता है, लेकिन आपके हमने आपको रसूलुल्लाह तो पागल हमें कहा? मारने, जाहिल एक मिनट, कहते हैं, पागल कहते हैं। हाँ, अरे यार पागल कह दो चलेगा, लेकिन जान से मारने की बात करते हैं आपके रसूलुल्लाह, इसका क्या करे? क्या करें? हाँ, क्या करे हमने बताइए आप? इस्लाम छोड़ा, बट इस्लाम हमें कहाँ मतलब कहाँ छोड़ता है? वो तो आप वही है कि आप मारो, तो फिर वो आपको निकाल दो कोई ना सर, वहां से निकाल दो। देखिए, आप पहली बात ये रसूलुल्लाह है ने क्यों कि कहा? क्या कहा? रसूलुल्लाह ने क्यों कहा मार दो? जो इस्लाम छोड़ दे उनको मार दो, क्यों कहा? देखिए, रसूल क्या अल्लाह ने जरूरत क्यों है कहा? किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह को? रसूल अल्लाह यार को हमारा सुनो कोई सुनो जरूरत मेरी बात नहीं है, को, कोई तो जरूरत क्यों नहीं मारने है के लिए कहा? क्यों मारने के लिए किसी। कहा? देखिए भाई, आप इस्लाम को जब नहीं मानेंगे तो रसूल अल्लाह की बात की क्या बात है भाई, आप बताइए ना। अरे मेरे तो वो एक मिनट, भाई इससे बड़ी बेवकूफी मेरे को नहीं लगती। अभी मान लो कि मैं शरिया कानून में हूं, ठीक है, या रसूलुल्लाह के जमाने में था, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दो। अच्छा, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूं, तो क्या मेरी जान बख्श दी जाएगी? यार इतनी छोटी सी चीज इनको क्यों नहीं समझ में आती? मेरे मानने या ना मानने से होगा नहीं, रसूलुल्लाह अगर पावर में है तो वो मेरा कत्ल करवा देंगे। मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह को हमारी लाइफ के बीच में आने की क्या जरूरत है? हम अगर नहीं मानते तो नहीं मानते, हमको मानने का कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया है रसूलुल्लाह ने? कत्ल ओनली करने टू का साहब, इसलिए हुक्म दिया है कि अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन पर हो, अल्लाह के चांद सूरज का फायदा उठाते हो, तो अल्लाह को नहीं मानोगे तो कत्ल करने का हुक्म हो ही भी गया। अल्लाह हम का अपने नहीं है, बिल इसमें पे से करते कुछ हैं, भी अल्लाह अपना का खाते नहीं हैं, है, अपना कमाते हैं। इसमें से अल्लाह क्या अल्लाह भी पार्सल अल्लाह का नहीं है। अल्लाह क्या पार्सल हाँ भेज रहा है क्या क्रेडिट ऊपर दे से? रहे हो आप हमारी अब नीयत अल्लाह क्या को। पार्सल भेज रहा है क्या ऊपर से? हाँ, ये हाँ मुझे बताओ, हाँ मैं घर में हाँ, बैठ जाता हूँ, ठीक है, ठीक, 1 रुपए का काम नहीं करूंगा, अल्लाह मेरे को देगा, मैं 5 हाँ वक्त की हाँ नमाज नहीं 7 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, चाश भी हाँ पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा, हाँ रोजे भी हाँ, रखूंगा, पूछो मेरे घर में पूछो मुझे खाना मिलना चाहिए। पूछो साहिल बाबू से कि लिखा है कुरान में नहीं कि रोजी तलाशना है? पूछो पहले। वो तेरे दे हंस अल्लाह का रहे हो, है बक बक दांत निकाल रहे हो। पूछो, हदीस है, कुरान में लिखा है ना कि रोजी। एक मिनट अल्लाह एक को मिनट, तो सज्जन बोल। सज्जन खामोश हो जाओ। देखिए यही होता है कि कहीं ना कहीं आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। अभी तक हमारे ओनली ट्रू भाई जो है वो क्या कह रहे थे कि तुम नहीं मानना है मत मानो, तुम नहीं मानना है मत मानो। जब मैंने उनको पकड़ा कि हमारे मानने या ना मानने से नहीं होता है, क्यों सजा दी, तो ये भाई का आर्गुमेंट आया। क्या आया? अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन में घूमते हो और अल्लाह को ही नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल तो कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो गैर मुस्लिम है, इनके लॉजिक के हिसाब से वो भी अल्लाह का खा रहे, अल्लाह का पी रहे, अल्लाह की जमीन में घूम रहे, अल्लाह की वजह से ऐश कर रहे, वो नहीं मानते तो फिर उनको मारा जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह मारते थे, ये सहाबा मारते थे। अब समझो दोस्तों, ये पूरा प्लान समझो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है।
کہ اللہ چاہتا ہے یا اسلام چاہتا ہے کہ چونکہ تم اللہ کا کھاتے ہو اللہ کا پیتے ہو، اگر پھر بھی تم اللہ کی نہیں مانو گے تو تم کو قتل کیا جائے گا، تمہارا قتل جسٹیفائڈ ہے. جی اونلی ٹرو صاحب یہی ہے نا بھائی؟ آپ کیوں ورگلا رہے ہو؟ کیوں آپ ورگلا نے رہے تو ہو ابھی آپ؟ کہا، آپ نے وہ ہی ابھی مرتد میں کہا آتے یہ ہیں بات. کافر، کافر مرتد میں آتے ہیں. اچھا اچھا، جو اچھا اچھا جو اچھا، سنو میری مرتد میں بات سنو، کافر آتے ہیں. میری آپ بات ایسی سن بات لو کر میں رہے ہو، بتا. بھڑکا رہے ہو لوگوں کو. میرے بھائی جو وجہ تم نے بتائی ہے مارنے کی، وہ کیا وجہ بتائی تھی؟ کہ اللہ کا کھاتے اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ گھومتے ہیں، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، اس وجہ سے تمہارا قتل جائز ہے. تو ہندو ہے کرسچن ہے، کیا وہ لوگ بھی یہی کام نہیں کرتے کیا؟ اگر ہمارا قتل جائز ہے تو ان کا قتل بھی جائز ہی ہوگا نا. اس میں فرق بتائیے، دونوں میں ڈفرنس بتائیے آپ. جب انہوں نے ایمان لایا نہیں، کتاب پہنچی نہیں، حق بات پہنچا نہیں ان کے دروازے پر، تو ان کو کیا ذمہ داری ہے؟ لیکن آپ کے دروازے پر حق Sahil, that's پہنچا. a very important قرآن point. آپ نے پڑھا نا Give me the space on کہ that نہیں one. پڑھا ہے آپ نے قرآن؟ یس جی ایڈم. ہیں؟ ہاں جی آپ نے بالکل درست فرمایا. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جن تک پیغام آپ لے کے چلے گئے ہو ان کا قتل جائز ہے نا، اس کا مطلب ہے. کچھ مطلب مت نکالیے، سیدھی نہیں بات کریے، نہیں مطلب سیدھی مت بات، نکالیے. اس سے سیدھی بات کیا کروں؟ کیا جن تک سیدھی آپ بات ہوتی؟ پیغام لے کے چلے گئے ہو ان کو دین ہوں، اسلام کے بارے میں بتا دیا ہے، کیا اب ہاں. ان کا قتل جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے اسلام فالو کیا؟ فالو کی بات نہیں ہو رہی ابھی. کہاں میں وجہ بات ہو رہی؟ بتا. مرتد کس کو میں کہا نے جاتا ہے؟ کہا ساحل میں بابو سے مرتد پوچھو. کی ابھی بات نہیں کر رہا، ابھی مرتد کی پوچھو بات ساحل نہیں کر بابو سے رہا، مرتد کس کو کہا جاتا ہے، ابھی پوچھو. مرتد کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں، کہہ رہا مرتد ہوں کی. رکو نا یار، سنتے نہیں ہے، یہ تو ایک دم پھٹ جائیں گے ایسا لگ رہا ہے. ہاں بولو ایڈم، جن وجہ لوگوں پہ کے بات ہو رہی ہے. جن لوگوں کے پاس آپ دین اسلام حق کی دعوت لے کے گئے ہو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، پھر بھی انکاری ہوئے ہیں اور محمد کو برا بلا کہا ہے، کیا ان کو قتل کرنا اب جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیں. نہیں جائز، ان کو نہیں قتل جائز. نہیں کرنا. اوکے مجھے ایک حدیث دکھا دو، ایک قرآن کی آیت دکھا دو جو تمہارے ساتھ چلے. میں تمہیں 4 دکھاؤں گا کیا جو تمہارے خلاف چلے گی. کیا چیز بتائیے؟ آیتیں قرآن کی. کیا ہوا؟ ان کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ نہیں، آپ ہماری بولتی نہیں بند ہوئی، آپ بتائیے کیا بول رہے ہیں. اب دکھائے نا قرآن سے ایک آیت کہ ان کیا لوگوں کا چیز؟ جن کو آپ نے اسلام کی دعوت دے دی ہے، جن کو آپ نے ہاں اسلام کا بتا دیا ہے، پھر بھی انہوں نے نبی پاک کو جھٹلا دیا ہے، دین حق ہاں سے غافل رہے ہیں، ان کے ہاں. ساتھ لڑائی اور قتل و قتال جائز نہیں ہے. دکھائیے. دیکھیے، ایک زمانہ فطرت کا ہوتا ہے جس کے فطرت دروازے پر، ہاں، فطرت کے زمانے میں جو نبی کو نہیں پاتا ہے، جس کے دروازے پر حق نہیں پہنچتا ہے، جس کو حق بات نہیں معلوم ہوئی ہے، اس پہ لازم نہیں ہوتا ہے. تو یار اس کو یہ سنتا نہیں ہے ساحل کی میں کیا بول رہا ہے ابھی یہ دو دفعہ. نہیں، یہ سنتے کچھ اور ہے، سمجھتے کچھ اور ہے، اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. کیا میں پرابلم یہ ہے. کیا میں دیوار سے بات کر رہا ہوں یا بھینس سے بات کر رہا ہوں؟ سوال میرا کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ اور دے رہے ہے. میں بول رہا ہوں جس کو آپ نے حق پہنچا دیا ہے، جس کو اسٹارٹنگ بتا میں یہ دیا آپ ہے، کا جس کوشچن کو کہہ سمجھے ہی دیا وہ نہیں. پھر بھی چھوڑنے، وہ پھر بھی نہیں ماننے کو تیار، اس کا بتا. اس کو تو تبلیغ کرنے والے کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں تو اس کو کوئی قتل کر ابے رہا ہے. یار کیا ڈنگر ہے قسم سے یار. سر ہے؟ سیدھی کوئی بات آپ قتل کو کر رہا ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ دماغ پورا نا جام ہو گیا. سیدھی بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی جنگ لگ گیا ہے، جنگ لگ گیا ہے بھائی، جنگ لگ گیا ہے بھائی. مسئلہ یہی ہے، مسئلہ ایکچولی آواز آ رہی ہے کیا سب کو میری؟ جی یار. آواز آ رہی ہے یار، یہ آوازار کر رہا ہے یار، اس کے ساتھ تو بات کرنا ہی جی حرام ہے یار، جواب اس نہیں لیے نہیں ٹھیک دیتا ہے، یار. نہیں لیکن ٹھیک ہے، یہ اصل میں انہوں نے بار بار اپنا سٹینڈ چینج کیا اور تبھی یہ پکڑے گئے ہیں، پھنس گئے ہیں. انہوں نے ابھی مطلب جب سے کہہ رہے تھے کہ تم کو نہیں ماننا ہے مت مانو، تم کو نہیں ماننا ہے مت مانو، تو تم مت مانو نا. لیکن جب ہم نے بتایا کہ بھائی ہمارے نہیں ماننے سے کیا ہوگا، پھر بھی تو اسلام اپنا جو ہے زبردستی ہم پہ لاگو کرتا ہے، تب یہ پھٹے ہیں. اچھا انہوں نے جو وجہ بتائی ہے تو وہ سیم وجہ تو باقیوں پہ بھی بیٹھتی ہے جو کافر ہے، ان کے لیے پھر الگ قانون کیوں؟
और मुर्तदों के लिए अलग कानून क्यों? तो पूरा इस्लाम ही एक नंबर का इलॉजिकल रिलीजन है, इसमें कोई भी चीज लॉजिक से प्रूव नहीं की जा सकती है। और आज का जो टॉपिक था वो भी इन्होंने लॉजिकली कुछ प्रूव नहीं किया है, बस इतना कहा है कि अगर इस्लाम में लिखा है तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना है तो निकल जाओ, अगर निकल जाओ तो कत्ल हो जाओगे। मुर्तदों का कत्ल बिल्कुल लॉजिकल है। हम्म मैं आपको इसमें लॉजिक दिखाता हूँ। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम को जानता है और फिर उसे छोड़ता है। अब हम्म इस्लाम को तो छोड़ा क्यों है? क्योंकि उसे पता लग गया इस्लाम की गंदगियां अंदर बैठ के। बाहर बैठ से तो इस्लाम आपको बड़ा अच्छा दिखाया जाता है, दूर के ढोल बड़े अच्छे सुहाने दिखाए जाते हैं। तो ये विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। तो सच्चाई पे तो इस्लाम फैलाते नहीं है, झूठ पे फैलाते हैं। अब एक बंदा इस्लाम ले आया है, वो 5-10 साल इस्लाम में रहा है, उसने इस्लाम को जान लिया है, अंदर से जान लिया है, अब उसने छोड़ा है। अब इसको मार दो, बाहर जाके असलियत दिखा देगा जो हमने दिखानी नहीं है, इसमें से सही मारो। बात है, लॉजिक है, मुर्तिद को मारने में लॉजिक है। क्योंकि इनकी भाई आप गंदगियां बताते हैं लोगों को। भाई एग्जैक्टली। आप इस्लाम को गंदगी जब बताओगे जब कोई रिलीजन वाले होगे तब ना। आप तो नास्तिक हो ना, क्यों? आप तो गॉड पे ये तो नया विश्वास नहीं लेके आए, रखते। ये नया लेके आप आए, ये नया क्या लेके क्या आए, धर्म है आपका? क्या ये धर्म नया। आपका आप बताइए? अच्छा अच्छा क्या अच्छा 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 क्या अच्छा, धर्म है आप एक बताइए? सवाल। अरे रुको यार, एक सवाल करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म मानोगे तभी आपको सही और गलत, अच्छा और बुरा नहीं पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा हाँ, फिर ये क्या? सवाल नहीं है। हमारा फिर सवाल है कि कभी से आप लोग इस्लाम में गंदगी के बारे में बता रहे हो, तो आप ही बता दीजिए कौन सा धर्म है कि जिसमें गंदगी नहीं है, नहीं तो नहीं वही फॉलो कर नहीं, लिया ये नहीं, जाए, नहीं नहीं, वही अभी फॉलो कर आपने लिया ये जाए। कहा। अरे सुनो, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कहे कि आप चूंकि कोई इंसानियत धर्म का को धर्म में मानते। कुछ नहीं गंदगी है। एक मिनट मिस एंजल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि चूंकि आप कोई धर्म को नहीं मानते हो, आप कैसे साबित करोगे इसमें गंदगी है? यही बात किया था ना आपने, हाँ है ना? हाँ तो मुझे हाँ। ये बताओ कि क्या आप हर चीज जो है अच्छी और बुरी जो आपको लगती है वो धर्म की या आपका जो मजहब है उसके वजह से आपको मालूम पड़ता है कि ये सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है? देखिए, कुछ तो चीजें हैं कि धर्म से पता चलती है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। कुछ हाँ चीजें हाँ। हैं, जनरल नॉलेज है, साइंस है, अच्छा, इससे मतलब पता मतलब चलता है। आपको, मतलब कई जगह पे आपको मजहब की जरूरत नहीं है ना? देखिए, अब आप बताइए, दुनियावी दुनियावी जो भी मसले होंगे उसमें उसमें धर्म से क्या लेना देना है? आप बताइए। तो वही हैं? कह रहा हूं ना कि आपका मजहब जो है वो जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान जो इसका है अपनी मजहब पूरी है, लाइफ मजहब के इसका हिसाब से जाए। इसका मजहब है कि वो फैक्ट्री बनाने के बारे में उसको थ्योरी बताता है। आप बताइए ना। अरे हमारा मजहब मैं तो नहीं आपको बताता कह है। रहा हूँ, एक मिनट, हमारा मजहब तो नहीं बताता है। मैं खाने के हलाल हराम के बारे में कह रहा हूँ, वो तो आपका मजहब ही बताता है ना, हाँ, है बिल्कुल ना? उधर बताता है। दिमाग नहीं चलाते हो ना? हाँ, तो मेडिकल साइंस आपको मालूम होगी कि जो खून जम जाता है गोश्त में, अरे वो जो है वो खाने नहीं पर बोल रहा हूँ उसमें भाई। एनर्जी होती है। आपको हलाल मालूम है? हराम, हलाल हराम जो करते हो, हाँ हलाल हराम और वो हाँ पाक नापाक, वो आपके मजहब की वजह से करते हो ना? जी। नहीं तो नहीं समझ में आता ना आपको कि ये पाक है या नहीं नापाक है। नहीं नहीं, ना देखिए, नापाक और पाक की दूसरी भाषा है, दूसरी बात है। आप ये उसमें मजहब मिक्सचर से मत कर। मालूम पड़ता है कोई चीज पाक है नहीं नापाक है, क्या तुम्हारे अकल नहीं, से मालूम पड़ता है? अकल से भी मालूम पड़ता है, मजहब से भी मालूम पड़ता है, तुम दोनों से अकल से मालूम पड़ता मालूम है। करते हो या मजहब से मालूम करते हो? अकल से मालूम करते हैं। यानी मजहब का कोई लेना देना नहीं है पाक नापाक में, खाने की चीज में? पाक नापाक दुनियावी है, अलग है, और पाक नापाक दूसरी चीज है, तो हलाल दूसरी। रसूलुल्लाह ने रस, रसू रस, हलाल हराम जो है, हलाल हराम, पाक हाँ नापाक, ये हाँ। रसूलुल्लाह ने फिर क्यों बताया कि ये चीज क्या? पाक है, ये चीज नापाक है? सूअर का गोश्त हराम है, नापाक है, ये हाँ, तो रसूलुल्लाह वही ने चीज क्यों मैं बताया? वही चीज कहना चाह रहा था कि हलाल हराम अलग है, पाक नापाक हाँ, अलग है। इसको इसको दोनों मिक्सर मत करिए। जैसे अगर हाथ मिक्सर। में गंदगी लग, देखिए सुनिए हमारी बात। अगर हमारे पाक पैर नापाक अल्लाह में, के रसूल हाथ ने नहीं में, बताया। पाक अगर हमारे, नापाक। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो हलाल हराम के उस पे से करते हो, ठीक है। गू गू खाना हलाल है क्या हराम है? यार कैसी बात कर रहे हो यार, फालतू की।
फालतू गिरी फालतू बात की नहीं, बात कर रहे हो। फालतू नहीं, अभी पता चलेगा। गू खाना हलाल है क्या हराम है? गू खाना हराम हलाल की बात नहीं है, ये नापाक चीज है, तो हराम हलाल नहीं है, है, हलाल हलाल नहीं है। है, हराम हलाल हराम के उसमें तो नहीं आता है, ये कौन फंस आपको गया बता फंस दिया हराम गया। हलाल में आता है? एक मिनट, गू हाँ, खाना, ये हम्म, सुनो, ये गू जो है वो हलाल खाना है या हराम खाना है? ये नापाक चीज है। अरे लेकिन खाने में हलाल हराम होता ना भाई। सुअर हाँ का होता गोश्त है, जो है ये खाना हराम है। हाँ हाँ, बकरे का गोश्त खाना हलाल है। तो कौन हाँ, बोला था आपको? खाने में हलाल हराम होता है ना, क्यों नहीं होता है? मैं क्यों नहीं आपसे होता? पूछ रहा हूँ। हम्म, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन हम्म बकरे का गोश्त खाना हलाल है हम्म ना? तो उस हम्म तरीके से मुझे बताइए, गू खाना हम्म, आपके लिए हलाल है क्या हराम है? हराम है। अभी आए ना, हराम है। हम्म, अच्छा ये हाँ, बताइए कि गू खाना हराम है, हलाल हराम बताते हैं मजहब ने, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। देखिए फिर वही बात, आप हमको फिर आप हमारी बात को भटक कि हमने कहा अरे कि अकल से भी अकल अकल है कि नहीं है अकल? नहीं नहीं नहीं, आपने जो कहा नहीं, कि हलाल जो नहीं, नहीं, सुनो सुनो अच्छा नहीं सुनो नहीं नहीं सुनो, नहीं, अरे आप सुनो सुनो सुनो, मेरी नहीं, बात सुनो, मेरी बात सुनो। फंस गए तो अभी कह रहे अकल से। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हलाल हराम ये मजहब बताएगा, रसूल बताएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पाक नापाक का आपने कहा था कि ये हम अकल से पता कर सकते हैं, लेकिन हलाल हराम जो है वो आपको कौन बताएगा? मजहब बताएगा, रसूल बताएगा। अभी मेरा सवाल, आपने ये कहा है कि गू खाना हराम है, यानी ये गू नहीं खाना चाहिए, ये आपको मजहब बताता है, वरना आपको नहीं पता होता। तो मुझे ये बताइए कि अगर मजहब नहीं होता तो क्या आप गू खाते? की बात ओनली टू कर सवाल। रहे हैं। नाक कान क्यों इंशाल्लाह। दिया अल्लाह ताला ने? सूंघने की शक्ति क्यों दिया? देखने की तो शक्ति क्यों दिया? फिर मजहब, एक मिनट रुक जाओ, फिर मेरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये कह रहे थे ये कि हलाल हराम जो है वो मजहब तय करेगा, उसके बिना एक आदमी फैसला नहीं कर सकता। अब मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि नाक और कान भी तो है। तो भाई हम भी उसी नाक कान और दिमाग से तय करते हैं, फैसला करते हैं, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तय करते हैं दिमाग से। ठीक है, तो इधर मजहब की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। मेरे भाई, आप लोगों का मसला ऐसा है ना कि आप ये कहेंगे कि अगर अगर अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताता कि गू खाना हराम है तो हम खा लेते, या अगर अल्लाह और उसके रसूल जो है गू खाना हलाल करते तो हम गू भी खा लेते। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। ना 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 ना, गलत इंप्लीकेशन कर रहे हैं आप। देखिए अच्छा, नॉलेज, रसूलुल्लाह अगर इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप नहीं खाते? देखिए दुनिया में लाखों चीज है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, लेकिन अकलन क्या खाना है क्या नहीं खाना है हलाल सब लोग हराम जानते तो हैं। बताया ना। जो नहीं हलाल धर्म हराम, को मानता है वो भी नापाक चीज हलाल, नहीं खाता। मेरे भाई तुम लोग घुमाते क्यों हो यार इतना? हलाल हराम का अभी आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम ने बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर या इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप खाते या नहीं खाते? क्या क्यों अपनी करता अकल है गु लगाते? गु 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 इंशाल्लाह गु खाते। गु क्यों हलाल करता है आप बताइए? क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। आईब्रो आईब्रो क्यों कर बनाना अगर सकता है? हराम, हाँ मैं क्यों कर बताता हूँ। सकता है? क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह आप, ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे, मेरी बात सुनो, हाँ रसूलुल्लाह आईब्रो बनाने की औरतों पे लानत भेजा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रसूलुल्लाह ने किया, उनकी मर्जी। आपके हिसाब से लानत र- अनलॉजिक है ये ना? अरे तो हो सकता है गू खाना आपके हिसाब से इलॉजिकल है, रसूलुल्लाह के हिसाब से लॉजिकल होगा, या इस्लाम के हिसाब से लॉजिकल होगा। तो वो अगर कर देते, आपको हलाल कर देते, इस्लाम अगर हलाल कर देता, तो आप खाते या नहीं खाते? कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाते? ये इतना जवाब दो। इस्लाम की लॉजिक आपको नहीं समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं हमारी आपकी प्रॉब्लम बात नहीं कर है, रहा हूँ। न रसूल की प्रॉब्लम है। जाती हैं, लेकिन अगर हर किसी का पेशाब खराब है, हराम है, तो नबी ने ऊंट का पेशाब पीने को क्यों बोला? ये भी बुखारी की हदीस है जी। वो बीमारी की वजह से बोला तो पेशाब। हाँ, पाक तो तो यहाँ पाक भी हुआ ना बीमारी फिर। है। नहीं नहीं, बीमारी के लिए हराम चीज भी
इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ तो रसूलुल्लाह का पेशाब भी तो वैसी है ना, वो कि जिसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो हराम चीजों से बनती है, लेकिन वो इलाज के लिए है। जिस तरह इलाज के लिए जब कोई इंसान को कोई चीज मुयस्सर नहीं हो, वो ऐसा जगह फंस गया तो वहां वो अपनी जान बचाने के लिए वो हराम चीज ओके, सुअर का भी इसका मीट आंसर ले खा लें, सकता अब है। इसका आंसर लें, ये अब है म्यूट कीजिएगा, बचने के अब लिए। म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। ये देखे सहाबी क्यों पीते थे। सर साहिल स्क्रीन दिखाएं। उम्मे सुलमा ने जिस वक्त पेशाब पिया, मोहम्मद साहब अपना बाउल ढूंढते रहे कि बाउल की तरह जिसमें वो पेशाब करते होते थे। तो हाउस होल्ड के लोगों ने कहा कि उम्मे सलमा जो स्लेव गर्ल है उसने ड्रिंक कर लिया है, आपका पेशाब मुबारक। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर, उसने जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लिया है। तो आपने कहा बीमारी और किसी मजबूरी की हालत में, भाई मेरी मजबूरी है, सहाबा कराम की मजबूरी थी, जहन्नम से नहीं, बचना था, उन्होंने वो मोहम्मद वो का पेशाब आउडर नहीं मुबारक है, पीते थे, वो ये भी आउडर है। नहीं है, वो ऑर्डर आउडर पे नहीं छोड़े, है, वो पेशाब तो आउडर ऑर्डर की नहीं मुबारक है। बात हुआ नहीं ना। हो रही, अरे ऑर्डर की वो बात नहीं गलती हो से रही। पी लिया पानी समझ के, तो पानी एक समझ मिनट के वो पी लिया तो क्या बोलता है वो मेरे भाई, ये रुकता नहीं है यार, ये फट जाता है। अभी देखो तुमने कहा कि गलती से पानी पी के पानी समझ के पी। मेरे भाई दुनिया का कौन सा बेवकूफ इंसान है जो पेशाब को पानी समझ के पी लेगा? जैसे ही नजदीक लेके जाएगा उसमें से गंदी बात आएगी। कौन सर सा इंसान है जो पेशाब मोहम्मद नहीं के रुको ना, पेशाब में तो बोलने मुश्क दो। की खुशबू आती थी। तो मुश्क की खुशबू आती तो वो आम पेशाब से फिर अलग हो गया ना, फिर इनको मानना पड़ेगा ना कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है पाक है। माशाल्लाह सर, सुभान अच्छा, अल्लाह। दूसरी चीज, पहला सवाल इनसे मैं इनको इसके लिए पीछे लिया क्योंकि ये आदमी फट जाएगा अभी, ये सुनता नहीं है और ये ब्रेक नहीं लगाता है। एक चीज ये, इसने कहा कि वो गलती से उसने पानी समझ के पी लिया। भाई पेशाब अगर गलती से ग्लास में रखा हुआ है, कोई उठा भी ले तो गंदी बास आएगी, समझ जाएगा ये पेशाब है। अच्छा, अगर बास से नहीं समझ पाया, उसकी नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो कम से कम मुंह में एक घूंट लेगा तो समझ जाएगा पेशाब है, उल्टी कर देगा। एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर उसने गलती से पी भी लिया था और रसूलुल्लाह को जब पता चला, तो रसूलुल्लाह का काम ये कहना था कि भाई ये पेशाब तूने पी लिया, ये हराम चीज है, दूसरे बार ख्याल रखना। यहाँ रसूलुल्लाह जो है वो मौके पे चौका उन्होंने इस तरीके से मारा कि भाई ठीक है, तेरे को अभी जो है जहन्नम की ये नहीं होगी, तेरे पेट में कभी बीमारी नहीं होगी। ये क्या बात है? रसूलुल्लाह ने उसको हराम नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने उसको नापाक नहीं कहा। इसका जवाब दो अलकामा सखावी साहब। पहली बात तो ये जो हदीस जो नकल कर रहे हो, ये हदीस ज़ईफ है। दूसरी कहाँ बात, ज़ईफ है? क्योंकि बात निकल आई, ज़ईफ हदीस है ना, ये कहाँ है? मजमू तबरानी में है, मजमू ज़वाइद में है, ये ज़ईफ हदीस है। ये दूसरी देखिए क्या बात लिखा मैं है ये उधर, कह रहा हूँ, इट्स नरेटर्स क्या आर लिखा? फ्रॉम दी मैन ऑफ सही बुखारी। नहीं, सही बुखारी के नरेटर रहने चेन से सही हो, चेन सही हो तो हदीस सही कहलाती ओए है। चेन, आप लोग यार ओए, सब्र कर, सुनो। नहीं, लर्न, चेन से इसको सही नीचे नहीं करो, होती है। पहले मैं जवाब दे दूं, नीचे करो। कभी मैं भी चुप हूँ, आपकी जवाब दो। जो होती है चेन, उसको आपने साबित करना होता है कि वो सही है कि नहीं। अगर चेन सही है, हर बंदा चेन ऑफ नरेटर में सही है, इसका मतलब है हर बंदे ने सच बोला है। आपको इस चेन में साबित करना होगा कौन सा नरेटर गलत है जिसकी वजह से चेन टूटी है और ये हदीस गलत है। झूठ मत बोलो मेरे साथ, चेन की ही अब मैं ऑथेंटिसिटी बोलूं, बन रही होती है। बोलो। अरे अब मैं बोलूं, खादिम रिजवी का बयान है, पेशाब मुबारक पे खादिम रिजवी अब का मैं बयान बोलूं है। भाई, अब मैं बोलूं। अच्छा ये रुक जा भाई, रुक जा, ये भी नहीं, सुन लो जरा। रुको, ये तुम्हारे इंजीनियर साहब भी इस हदीस को सही कहते हैं, ये देखो। इस्लाम यूं प्याला होता था आपका एक, तो इसको भी अगर कोई बयान करता है तो नबी इस्लाम ने कभी अपना खून पिलाया नहीं किसी को, हादसाती तौर पे किसी ने पी लिया। पेशाब मुबारक का भी एक वाक्य, हाँ पसीना मुबारक के बारे में बुखारी मुस्लिम हदीस है कि नबी इस्लाम यूं प्याला होता था आप, वो साइड पे जाके सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पी, ये लफ्ज अगले पाक ही नहीं बल्कि कर ली है। बस इतनी थी, को नहीं पता था कि इसमें मुबारक, खून मुबारक, पेशाब मुबारक, मुबारक समझते हैं। जहां तक पीने का ताल्लुक है ना, तो एक रवायत है, मजमू ज़वाइद में भी है और इमाम तबरानी ने भी अपनी मोजम में ली है कि हुजूर की एक कनीज थी,
تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چرپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے, اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی. اللہ کے نبی کا پیشاب تھا. اللہ کے نبی ایک ایکسٹراڈنری کوالٹی والے. تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا, کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس سائل کافی ہے, سائل کافی ہے, حضور کافی ہے. سن لیے بھائی, حدیث بالکل صحیح ہے. اب یہ سب ہے نا یہاں پہ بہانے نہیں بنانا. ہاں ہلو ہاں القمہ صاحب. ہلو, ارے آگے بولو گے. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور دوسری بات یہ ارے جو پینے بھائی کا واقعہ ہے یہ حلال پر جو ہے یہ نہیں ہے. یہ کس کے مطابق ضعیف ہے؟ کس نے ضعیف کی جاتی ہے؟ تمہارا انجینئر مرزا بول رہا صحیح ہے, تمہارے پورے ویب سائٹس والے بول رہے صحیح ہے, تمہارا یہ خادم رضوی بول رہا صحیح ہے, تمہارا دوسرا عالم بول رہا ہے صحیح ہے. تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی جو تم ضعیف کہہ رہے ہو؟ اس کی وجہ تو بتاؤ. ضعیف اتھارٹی پر ہوتا ہے, ضعیف جو ہے کس نے کہا ضعیف؟ کس نے ضعیف کہا ہے؟ کس نے کہا ضعیف؟ سند دکھاؤ, سند میں ضعیف ہے راوی. اور دوسری بات یہ حلال پر نہیں. سند ٹھیک ہے, جو سند کسے کہتے ہیں؟ چین آف نریٹر کو سند کہتے ہیں. ڈنگر, ارے ڈنگر قرآن اور حدیث, صحیح حدیث کے مقابلے میں جو حدیث ٹکراتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. چین جس کو ارے تم سند ڈنگر کہتے ہو وہ صحیح ہے, وہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری کی. ارے چپ نہ, ساحل ان کو انگریزی نہیں آتی ہے, ان کو اردو میں بتایا جو کرو صحیح یار. ہے چین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو اردو میں بتاؤ یار. جو صحیح حدیث. اس نے چین نہیں دیکھی, اس کو معلوم نہیں ہے. اس کے سامنے بڑے بڑے علامہ بول رہے صحیح ہے, لیکن اس کو امبیرسمنٹ اتنی ہے نا اس حدیث کی وجہ سے کہ یہ صحیح اگر حدیث رہے بھی نا تو یہ رسول اللہ کے پیشاب کو جو ہے نا ناپاکی کہے گا یہ, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے کہ میرے رسول اللہ نے ایسی حرکت کیوں کی. پرابلم یہ ہے اس کے ساتھ, سمجھ رہے ہو؟ یار میوٹ کیوں کرتے ہو یہ بتاؤ, ڈر لگتا ہے بات کرنے میں کیا؟ تاکہ کوئی اور بھی کچھ بول سکے. اچھا ایک بات بتاؤ, جب یہ بول رہا ہوں کہ یہ صحیح حدیث جو کتب ستہ میں جو حدیثیں بھری پڑی ہے, کتاب طہارت میں پیشاب ناپاک ہے, پھر تم ایسی کتاب سے پیش کر رہے ہو جو کتب ستہ کے سب سے نچلے درجے میں ہے, جو کتب ستہ میں آتا نہیں ہے, اس سے آپ حدیث. ارے بھائی تمہاری ہماری پیشاب مبارک, تمہاری ہماری پیشاب مبارک نہیں ہے, نبی کی پیشاب مبارک ہے بھائی. ہاں, اور دوسرا اس کو اصول بھی نہیں معلوم ہے. کتنے بھی اگر وہ کتب ستہ نہ بھی ہو, اس کی سند اگر صحیح ہو تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے, اس کی اوتھینٹسٹی مانی جائے گی. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ بھائی اگر کتب ستہ میں نہیں ہے تو اس کی جو انٹینسٹی ہے یا اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو اوتھینٹسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ حضرت کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. یہ بول رہے کون سی کتاب سے لا رہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک حدیث بتا دو جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا پیشاب بھی ناپاک ہے. جی, پیشاب کلیہ طور پر ناپاک ہے, چاہے وہ کسی کا ہو. اگر ناپاک نہیں ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں پانی کا استعمال نہیں کرتے, وہ اٹھ جاتے ہیں بغیر پانی سے دھوئے اٹھ جاتے. حدیث بھری پڑی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. ارے میرے بھائی بھری پڑی ہے مت بول, حوالہ دے. حوالہ ہے, حوالہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, اور کتب ستہ کے علاوہ جتنی بھی ساری کتابیں ہیں سب میں ہے کتاب طہارت. ایڈم یار یہ لوگ کیا دماغ ہے یار ان کا, حوالہ مانگ رہے, نمبر مانگ رہے, یہ اپنا اس میں ہے اس میں کیوں کر رہا ہے بھائی؟ حوالہ دو نا, حوالہ. جناب سر یہ سنو پہلے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़ेदान के पास खड़े हुए और वहां पर कचरा भरा हुआ था, तो आपने वहां पेशाब किया और सहाबा रजी अल्लाह अन्ह से आपने पानी मांगा, तो आपको वो पानी ला कर दिए और आपने उसे धोया, यानी आपने तहारत हासिल की, पेशाब करके आपने धोया, पेशाब करके धोया। इसकी ये दलील है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, नसाई में है, अबू दाऊद में है, इब्न माजा में है, मुत्तफिक अलैह हदीस है, आपने उसे धोया। तो इससे अच्छा, ये बात वाज़ेह हो गई कि आपका पेशाब पाक नहीं है, पेशाब नापाक है, चाहे वो किसी का हो। अगर वो जो आपने एक मिनट यार, तुम लोग को ब्रेक क्यों नहीं लगाना है? फ्रूट घर पे लाते हो तो धोते हो क्या नहीं धोते हो? फ्रूट घर पे लाते हो तो फ्रूट लाके धोते हो ना? फ्रूट घर पे लाते हो, ये फ्रूट है, पेशाब करके पेशाब को धोना इसकी अलामत है कि वो नापाक है। नहीं, साहिल मैं इसको सेट कर देता हूँ। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि मोहम्मद जनाबत की हालत में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उनकी नमाज कायम रहती है, और तो फिर ये धोना या ना धोना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि लोग सुन्नत पे अमल करें। नहीं, मोहम्मद जनाबत की हालत में नमाज नहीं कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत के हालत में नहाते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। सही हदीस में भरी पड़ी है। अगर मैं सही हदीस में नहीं, साबित कर दूं, क्या अगर मैं क्या साबित करोगे? क्या साबित करोगे? अगर मैं सही हदीस में साबित कर दूं कि हाँ, तो बताओ ना, क्या साबित करोगे? सुनोगे तो फिर यार, ये बंदा क्या पागल है यार। बंदा तो तू पागल है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, भक्त को चंदा बटोर रहा है, झूठी हदीस बयान करके और झूठ बोलकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में नहाते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। तो सुनना भाई, सामने वाले का सुन तो सही, पूछ तो सही, कहाँ लिखा है साबित कर, कुछ पूछ तो सही, सीधा नहीं क्यों करता है भाई तू? अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हो? जनाबत की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए बगैर नमाज पढ़ते थे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं दिखा दूं। एक मिनट आना, तो भाई एक बार फिर देख, दिखा दूं बोल रहा है तो भी नहीं है बोलता। बोल रहा हूँ नहीं है। अरे तो देख हंस रहे हो जब बोल रहा हूँ नहीं है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत, अगर मैं दिखा दूं क्या करोगे? दिखाओ। नहीं, अगर मैं सुन लो, अब यहाँ पे सुन लो, अभी भी कोई हुज्जत, अब कुतुबुस सित्ता बोल रहे हो ना, कुतुबुस सित्ता में से दिखाता हूँ, सही दिखाता हूँ, उसके साथ क्या करोगे? अब यार दिखाओ ना, करोगे क्या? अगर सही हुई कुतुबुस सित्ता में हुई तो अब क्या करोगे? अब भी इस्लाम छोड़ देगा भाई हमारा, अब भी इस्लाम छोड़ देगा। अब भी दिखाओगे तो मैं एडम सीकर की बहन से शादी कर लूंगा और इस्लाम को छोड़ दूंगा। यही औकात है आपकी। यार तुम लोग शादी से, सेक्स से बाहर क्यों नहीं शादी निकलते? कर लूंगा ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि रेप कर लूंगा एडम सीकर की बहन। अच्छा, इस्लाम से निकल जाएगा ना? एडम सीकर की बहन से शादी करके इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियन बन जाऊंगा। मेरी तो अच्छा चल, क्रिश्चियन बन जाएगा। हाँ चल, वो तो बहन है ही नहीं, तो वो मसला तो सेट हो गया, लेकिन क्रिश्चियन बन जाएगा। क्रिश्चियन बन जाएगा। दिखाओ जी, अब दिखाओ जी, स्क्रीन दिखाओ। नहीं, एडम सीकर की बहन से शादी करूंगा। बहन है नहीं, बहन पैदा करे, अपनी माँ दे देना, बहन पैदा कर दे तुम तेरे लिए। तेरी बहन से स्क्रीन दिखाए सर, इन्हें स्क्रीन दिखाए। बहन दिलवा देता हूँ यार। ये बहुत फनी था। बहुत ज्यादा। अरे जब बोल दिया उससे बहन नहीं है तो वो तो शर्त हट गई, तो दूसरी शर्त क्रिश्चियन बनने की है, तो वो बनना भाई तू। इनको समझ नहीं आता, सुनते नहीं है यार, कान नहीं है इनके। देख भाई, अभी हदीस देख। ओके, ये देखे सर, सुनन नसाई की हदीस है 183। यहाँ पे कह रहे हैं, आई एंटर्ड अपॉन उम्मे सलमा एंड शी टोल्ड मी। हदीस नंबर बता जरा, हदीस नंबर मैं भी खोलूं, हदीस नंबर बता। अबे सामने लिखी है, सामने लिखी है। सुनन नसाई 183 हम सबको दिख रहा है भाई, आपको नहीं दिख रहा है अलकमा साहब? नहीं, स्क्रीन छोटी है, हदीस नंबर बताइए एक बार।
मैं सर्च कर रहा हूँ, हदीस नंबर बताओ। 183 बड़ी स्क्रीन लगाओ 183 इनके लिए। 183 हाँ सुनन नसाई। हाँ हाँ सुनन नसाई। 183। कोई नहीं, हाथ चुप लगा दो, कर बड़ा हो यार, जाएगा, तेरी बड़ी हो बहन से जाएगी शादी जिंदगी। कर लूंगा। अरे शादी बस ना बोल भाई, तो रहा अभी हूँ, अभी तक गम में क्यों है, गम में क्यों है, रुक जाओ। चल हदीस देखो खोज अभी रहा हूँ एंड अब बताओ। हदीस, खोज रहा हूँ। खोज रहा हूँ, खुजेगी ही नहीं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ओ बाप रे बाप। तुम हदीस तो पढ़ो। हदीस मिली है, पढ़ रहा हूँ मैं। ऊंची पढ़ना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया तो उन्होंने मुझसे बात किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं, सुबह करते फिर रोजा रखते, और हमने सलमान बिन यसार से इनसे हदीस के साथ बयान किया कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या खा गया? स्टेट ऑफ जनाबा, जनाबत की हालत में, वो क्यों नहीं पढ़ा? अरे पढ़ तो रहा हूँ, पूरी हदीस यही है। तो मोहम्मद जनाबत की हालत में था? नहीं है, एहतलाम से नहीं, एहतलाम से नहीं, सुबह करते। पॉज कर, म्यूट कर। मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू वेक अप इन द स्टेट ऑफ जनाबा। स्टेट ऑफ जनाबा क्या होती है? जनाबत की हालत क्या होती है? अरे तो मैं तो वही पढ़ रहा हूँ ना। सलमान बिन यसार कहते हैं कि मैं, सुन ले एक बार, सलमान बिन यसार कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सलमान नहीं है, सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सुलेमान है, सुलेमान, सलमान नहीं है। सुलेमान बिन यसार कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया तो उन्होंने मुझसे बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं बल्कि जिमा से सुबह करते फिर रोजा रखते। रोजा तो जनाबत की हालत में है, इसमें कोई शक नहीं। और हम से सलमान बयान करते हैं कि इस हदीस के साथ यह भी बयान करते कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहाँ हुआ पहलू में गोश्त का टुकड़ा पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से खाया, फिर नमाज के लिए खड़े हुए और वजू नहीं किया। तो जनाबत की हालत में थे, सेक्स की वजह से, जमा की वजह से, वेट ड्रीम की वजह से नहीं। ये बाद का मौजू, ये बाद की हदीस है। चुप, समझ, सुना पहले। मोहम्मद साहब इख्तिलाम की हालत में, रात को ट्रक नहीं उल्टा, बीवी से जमा करने के बाद जनाबत की हालत में खाना भी खाया, रोजा भी रखा, नमाज भी पढ़ी और वजू भी नहीं किया। साहिल अभी से बोलने दे, पूरा माइक दे उसको बोलने। ये बोल रहा है कि वो अलग वाकया है, मतलब वो अलग है, तो बीच वो अलग वाकया है, वो अलग बात। साहिल नहाना साबित कर दे, बगैर फुल स्टॉप के चल रहा है सारा कुछ यार। गुसल साबित कर दे, इस हदीस में गुसल साबित कर दे, ये वाकये में गुसल साबित कर दे। तेरी बात सही, हमारी बात गलत गया है, वो दूसरा है, और ये नीचे का वाकया है, ये दूसरा वाकया है। समझ में आ रही बात? साबित करो। हदीस से ही साबित है ना, हदीस से ही साबित है। कहाँ है हदीस में साबित है। क्या साबित है? हदीस में लिखा हुआ है। हम और सलमान बिन यसार ने इस हदीस के साथ जो ये हदीस बयान किया, इस हदीस के साथ बयान किया कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये जो हदीस बयान कर चुका, फिर इसी में एक और हदीस ऐड कर रहे हैं कि सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
वहां पहलू में गोश्त रखा और गोश्त गुसल खाया। साबित करो, गुसल साबित ये करो। दूसरी हदीस है, इसमें गुस्ल में नहीं थे, इसमें तो गुस्ल में ही थे, वजू में कहाँ भी है, होंगे। कहाँ है, वो कहाँ है दूसरी गुसल में हदीस है, थे? ऊपर का टुकड़ा ही अलग है। कि तो बात समझ साबित में नहीं करना आ रही। इस ये सुन अलकमा भाई सुनो सुनूंगा क्या, सुनो ये दूसरी हदीस है और मैं दूसरी हदीस पेश कर तो रहा हूँ। इस नहीं नहीं सुनो दूसरी सुनो हदीस इस नहीं अरे यार रुक जाओ यार, तुम सुनते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि ये वाकिये में अगर आप कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने बीच में गुसल किया था, वो गुसल साबित करो, आप गुसल साबित करो। नहीं कर सकता। गुस्ल दूसरी हदीस में है ना, कहाँ है गुस्ल बोल रहा हूँ ये दूसरी हदीस में है। किधर है दूसरी हदीस? उसमें ये पूरा वाकिया होना चाहिए और बीच में गुस्ल होना चाहिए, बताओ। दूसरी हदीस में भरी पड़ी है। अरे फिर भरी यार, ये जब भरी पड़ी बोलता है ना, मेरा दिल करता है कि एक फाइट अपने आप को अच्छा मारूं। एक सेकंड, मैं किताब से ही डाउनलोड कर लेता हूँ अभी हाँ। किताब खोल लेता हूँ मैं। कोई भी सही बुखारी ही खोल लेता हूँ। हाँ, सही ये बुखारी, वाकिया बताना, यही वाकिया बताना। सही बुखारी। रसूल कुछ भी सल्लल्लाहु अलैहि खोल लो वसल्लम भाई। जनाबत में हालत में नहाते फिर नमाज पढ़ते हैं। और इस ये जो टाइम में हदीस जो तुम नहीं ना है। सुनो क्या मेरी इस बात टाइम सुनो। सही ओ बुखारी अलकमा खोल साहब, रहा हूँ मैं, अरे सुनो ना यार, खोलो तुम। सुन रहा तुम्हारा हो हूँ सकता, तुम्ही लोगों। खोलो, हो सकता है तुम्हारा दिमाग का ताला भी खुल जाए। पहले एतराज अच्छे से सुन लो। तुमने ये वाकये में, क्योंकि हमारा एतराज ये है कि जब ये वाकया हुआ रसूलुल्लाह ने गुस्ल नहीं किया, तुमने ये जब साबित तुम करना हदीस है। पर झूठ बोलते हो तो मैं कहा वही साबित कर रहा हूँ, तुम झूठ, सही बुखारी खोल रहा हूँ। ये वाकया होना चाहिए उसमें, सही बुखारी में। अरे ये वाकया तो अलग अलग दो हदीस है, एक में किसने कहा इंक्लूड है। अलग अलग दो हदीस है? किसने कहा दो? अरे जब हदीस सनद के एक है, सयाको एक सबाक से नहीं समझ रहे हो, दो नहीं, हदीसें एक एक में दिन की मिक्सचर बात है। हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात। ये देखो शुरू कहां से हो रहा है, शुरू हो रहा है रात में टपाटप से, उसके बाद बात जा रही है रोजे क्या पे। तो तुम्हारे मम्मी के साथ तुम्हारे पापा? अरे सुनो यार, हाँ टपाटपी करते थे ना भाई, हर अरे कोई टपाटपी करता है, लैंग्वेज सही यूज करो ना, हर लैंग्वेज कोई, सही यूज करो ना। अरे हर कोई टपाटपी करता है ना यार। अभी मेरे को हाँ तो सेक्स फिर तुम बोलने में, वही से तो तुम पैदा हुए हो, टपाटप तुम भी से ही। वैसी, तो फिर तुम भी वैसी, अरे सुनो तुम भी वैसी ही पैदा हुए तुम हैं वैसे ही पैदा अपने। हुए ना। अरे सुनो भाई, तुम भी वैसी ही पैदा हुए। सेक्स बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। 8,000 लोग देख रहे हैं भाई, सेक्स बोलना ये इतना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं टपाटप बोला। ठीक है, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं सेक्स बोलता हूँ। रात में सेक्स हुआ, उसके बाद सुबह में रोजा रखा, उसके बाद शाम में उन्होंने वो ग्रिल्ड रिब्स और ये सब खाया, उसके बाद नमाज पढ़ी और वजू भी नहीं किया। ठीक है, तो ये एक ही दिन का वाकया रात लग में रहा है। नहीं है। ये ग्रिल्ड रिब्स जो खाई, कौन कह रहा है कि हाँ शाम में खाई कि सहरी में खाई? नोबडी इज हाँ टेलिंग दैट। सो हाँ, वो बेसिकली भी है। मेरे ख्याल में तो इस हदीस के मुताबिक नबी पाक ने रोजा रखने के लिए सहरी की है, जिसमें हम्म उन्होंने ग्रिल्ड रिब्स खाई हैं और उन्होंने उसके बाद नमाज भी पढ़ी है, क्योंकि बताया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट देखे ना। उम्मे सुलमा क्यों बता रही है कि नबी पाक जनाबत में थे, कि हम्म जनाबत की हालत में उठे सेक्स करके हम्म मुझसे, ऑब्वियसली उनकी बीवी है, मुझसे सेक्स करके उठे, उठने के बाद वजू नहीं किया, गुस्ल अरे नहीं किया। पागल, ये यार सब्र अलग कर अलग यार, सब्र वाकया है, कर दो यार, सब्र दो कर, सब्र अलग कर अलग वाकया है, एक शाम का, का वाकया है। भाई, सब्र कर समझ में ही नहीं आ यार, रहा है तुम सब्र कर ओ लोगों भाई, को। सब्र कर, सब्र कर। देखो सबर नबी तो तुम्हें नहीं होता है। अब बोलने दे ना यार। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उम्मे सुलमा ने बताया कि अल्लाह का नबी जब उठते थे, यूज टू वेक अप, यानी कि कंटिन्यूअस में गेम हो रही है, स्टेट ऑफ जनाबत में मेरे से सेक्स करके, वेट ड्रीम की वजह से नहीं, वेट ड्रीम की वजह से नहीं, ट्रक नहीं उल्टा, देन ही वुड फास्ट, तो उस वक्त रोजा रखते थे। एंड शी टोल्ड हिम दैट शी ब्रॉट प्रॉफिट सम ग्रिल्ड रिब्स, और उन्होंने वो खाई, खड़े हुए नमाज पढ़ी, वजू भी नहीं किया।
सो पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, दिन के टाइम या रात के टाइम किस टाइम पे सेक्स किया, गुस्ल नहीं किया, रोजा रखने के लिए उठे, सहरी खाई और नमाज पढ़ी, 3 चीजें हैं, इसके अंदर चौथी चीज ही कोई नहीं है। दैट्स इट। यस अलकमा भाई। अरे बोलो अलकमा साहब। मैं बोल रहा हूँ कि म्यूट क्यों करते हो, डरते क्यों? कंटिन्यू बात करने दो। अरे तो तुम सुनते ही नहीं हो गलत ना। बता रहे हो, हदीस पर तुम झूठ बोल रहे हो ना। ये अलग अलग वाकया है दो। जब से मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग वाकया है दो, और इसको समझने के लिए दूसरी हदीसों पर जाना पड़ेगा। मैं दूसरी हदीस निकाल के जब बोल रहा हूँ कि मैं सही बुखारी खोलने जा रहा हूँ, उसमें पूरा एक चैप्टर ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में नहाते थे, फिर वजू करते थे, वो तो नहाना ही वजू हो गया, और फिर वो नमाज पढ़ते थे। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो कि नहीं, ये दो अलग अलग हदीस को एक में ही जोड़ रहे हो। सही बुखारी किताब तहारत उठा के देखो, पूरा चैप्टर ही है। सही मुस्लिम में भी है, नसाई में भी है। नसाई की किताब तहारत की हदीस है भाई। अरे साहिल भाई, इसको 10 मिनट दो। साहिल भाई, इसको 10 मिनट दो, इसको। अरे तो ये दूसरी हदीस है ना, ये हदीस जो है ये दो डबल हदीस है, एक में ही इंक्लूडेड है, 2 वाकयात हैं। अगले समझ में नहीं आता, एक हदीस में 2-3 वाकया होता है। मेरे भाई 2-3 वाकया हो, 2-3 वाकया होता है, तो तू कोई ऐसी हदीस बता दो ना तुम जिसमें ये पूरा वाकया और उसमें गुस्ल भी हो। अरे भाई हदीस नंबर मुझे याद नहीं है, मैं पूरा किताब ही खोल रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ तो। साहिल भाई, इसको 10 मिनट दो ना, तो किताब खोलने दो ना भाई। बात करें वीडियो की, तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।